Welcome to the lecture 17 of Power BI. I am Hajra Hashmi. Today we will discuss step-by-step measure calculation. Now let's see this table on the screen जिसमें कैटेगरी नेम के अगेंस्ट हमारे पास मेजर है टोटल रिटर्न्स का जो वैल्यू दे रहा है। तो इसमें एक्सेसरीज़ जो है जो 1115 दिखा रहा है, तो वो कैसे इसने कैलकुलेट किया, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है इसको हम देखते हैं। और इसमें रिमेंबर करने वाली बात यह है कि दिस ऑल हैपन्स इंस्टेंटली बिहाइंड दिस सीन्स every time the filter context changes. Now I would like to think this as a 3-step process. Step 1 is filter context is detected and applied. This is where Power BI looks at the filter context for that particular value and says, okay, I am being asked to only care about rows where the category name in my product table equal accessories. From here we move into the step 2, which is where that filter context category name equals accessories filters flow downstream to all related tables. Now in the third step, measure formula evaluates against the filtered table. For example, here the measure is count rows. It evaluates the number of rows against the filtered value. Okay, now let's understand the syntax of DAX. Consider a simple small function which is a sum function, and let's break it down into its components. On the left side, this is a measure name. There's a note that measures are always surrounded in brackets, that is bracket total quantity. When reference and formulas, so spaces are okay. So next after the equal sign is the function name, which is calculated columns don't always use functions but measures do. अगर हम इक्वल्स के बाद जो है डायरेक्टली हम टेबल और कॉलम नेम दे दें, जैसे कैलकुलेटेड कॉलम में इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन क्वांटिटी अगर डायरेक्टली लिख दें तो इट विल रिटर्न अ वैल्यू, बिकॉज जो है वो इट इवेल्युएट्स वन रो एट अ टाइम. बट ऑन दी अदर हैंड जो मेजर में अगर हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि ये जो है इसको एग्रीगेशन ये कैलकुलेट करता है. उसके बाद जो है ये हमारे पास टेबल नेम है और ये कॉलम नेम है, जो दोनों मिला के दिस इज़ कॉल्ड अ फुली क्वालिफाइड कॉलम सिंस इट्स प्रीसीडेड बाय द टेबल नेम. टेबल नेम जो है वो जो अगर स्पेसेस के साथ है तो उनको सिंगल कोट्स में लिखते हैं, जैसे विदाउट ए स्पेस ट्रांजैक्शन क्वांटिटी लिखेंगे, लेकिन अगर जो है विद स्पेस है तो ट्रांजैक्शन टेबल उस पर कोट सिंगल कोट और फिर कॉलम नेम लिखेंगे. हेयर्स अ प्रो टिप कि फॉर कॉलम रेफरेंस यूज़ द फुली क्वालिफाइड नेम, दैट इज़ टेबल और ब्रैकेट में कॉलम, वेयर एज फॉर मेजर रेफरेंसेस just use the measure name, that is bracket measure. Now let's talk about the DAX operators. Now you can see that there are arithmetic operator like plus, minus, exponent, division, comparison operators like equals to, less than, greater than, less than, equals to, greater than, equals to, and logic operators जिसमें एम्परसेंड जो है वो कॉन्कैटिनेट करता है टू वैल्यूज़ को, और जो है अगर डबल एम्परसेंड है तो वो एंड फंक्शन यूज़ होता है एज अ डबल पाइप फंक्शन, और है सिंगल पाइप फंक्शन नॉट का फंक्शन है. नाउ लेट्स डिस्कस द कॉमन फंक्शन कैटेगरीज इन DAX, देन वी विल शिफ्ट टू द डेमो ऑफ द DAX. Here first we have math and stats functions, जिसमें बेसिक एग्रीगेशन फंक्शंस हैं जो कि कॉमन जैसे हैं कि सम, एवरेज, मिक्स, मैक्स, मिन, मैक्स, डिवाइड, काउंट, काउंट ए, काउंट रोज़, और आइट्रेटा फंक्शंस हैं. आइट्रेटा फंक्शंस जो है वो रो बाय रो कैलकुलेट करते हैं, इसलिए जो है सम एक्स है, एवरेज एक्स, मैक्स एक्स, मिन एक्स, रैंक एक्स. Next are logical functions. Logical functions are for returning information about values in a given condition expression. The common example इसकी है if error, and, or, not, switch, true and false, etc. Next are text functions. Functions to manipulate text strings or control formats for dates, times, or numbers. Common examples are concatenate, format, left, mid, right, upper, lower,
proper, length function, etc. Next are filter functions. These are lookup functions based on related tables and filtering functions for dynamic calculations. Common example include calculate function, which is very important, filter, all except, and related functions. And the last you can see these are date and time function, basic date and time functions, as well as advanced time intelligence operations. Common examples are date, if, year, fraction, year, month, day, hour, minute, second, today, now, weekend, weekday, week number, etc. So let's dive into the demo basic functions of DAX, and we will start with the date and time function. Now first is date time year function, जो कि return the day of the month between 1 to 31, month of the year और year of a given date. इसका syntax ये है कि day, month या year और साथ में जो है ना वो date का column साथ में लिख दिया. उसके बाद जो है वो आवर, मिनट और सेकंड का फंक्शन है, जिसमें इट रिटर्न्स द आवर 0 to 23, मिनट 0 to 59 और सेकंड 0 to 59 ऑफ अ गिवन डेट टाइम वैल्यू. इसमें इसका सिंटेक्स है आवर, मिनट, सेकंड और डेट टाइम के साथ डेट होनी चाहिए, वो जो है ना उसमें देना है. उसके बाद है टुडे नाउ, तो इसमें इट रिटर्न्स दी करंट डेट और एग्जैक्ट टाइम. इसका सिंटेक्स भी यही है, टुडे एंड नाउ. इसके बाद जो है वो वीकडे वीक नंबर, जिसमें इट रिटर्न्स अ वीकडे नंबर फ्रॉम 1 संडे टू 7 सैटरडे और वीक नंबर ऑफ द ईयर. तो उसमें जो है इसका जो वीकडे और वीक नंबर इसका सिंटेक्स है और डेट और रिटर्न टाइप इसमें मेंशन करनी होती है. उसके बाद जो है एंड ऑफ मंथ जो है वो इट रिटर्न्स द डेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, प्लस माइनस आई स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ्स. एंड ऑफ मंथ जो है वो स्टार्ट डेट और मंथ्स इसमें देते हैं और इसका सिंटेक्स ये है. और डेट इफ़ में जो है इट रिटर्न्स अ डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स बेस्ड ऑन सिलेक्टेड इंटरवल. तो डेट इफ़, डेट 1, डेट 2 और इंटरवल कोई मेंशन करे. तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एज निकालनी है तो उसमें इंटरवल मेंशन कर दें तो वो डिफरेंस बता देगा डेट इफ़. अब देखते हैं इसे पावर BI डेस्कटॉप में. तो यहाँ पे मेरे पास कैलेंडर का टेबल ओपन है. मैंने राइट क्लिक करके न्यू कॉलम किया है और इसमें जो है मैं डे ऑफ वीक डे जो है उस फंक्शन को यूज़ करूँगी. तो डे ऑफ वीक मैंने लिखा और उसके बाद जो है वो इक्वल्स टू करके मैंने वीक डे का फंक्शन जो है इसने ड्रॉप डाउन में शो कर दिया. इसने जो भी एट्रीब्यूट्स मुझे देने हैं इसके अगेंस्ट मेरे पास ऊपर मेंशन भी हो गया. तो मैंने यहाँ पे ABC कैलेंडर सेलेक्ट किया, अपना डेट सेलेक्ट की है और फिर मैंने इसको मैं ये बता रही हूँ कि डे जो है कहाँ से स्टार्ट होगा. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 सेलेक्ट करती हूँ तो वो संडे 1 कर रहा है, फिर मैं 2 सेलेक्ट करूँगी तो मंडे से 1 करके संडे को 7 कर रहा है. तो फिर मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया. ये मेरे पास इसका आउटपुट आ गया है और ये इसने डे ऑफ वीक जो हैं वो मुझे बता दिए हैं, कौन सा डे चल रहा है वीक का, इसने मुझे मेंशन कर दिया. इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट इसमें एग्जांपल मैं एक लेती हूँ. मेरे पास जो है वो कस्टमर का एक टेबल है जिसमें बर्थ डेट मेरे पास कस्टमर की मौजूद हैं. तो एट दी एंड मैंने निकालना है, एज निकालनी है कि टुडे से लेके कितनी एज हो गई है कस्टमर की. तो मैंने बर्थ डेट का पहले मैंने ईयर सेपरेट किया है. तो एक मैंने कॉलम ऐड करके इसमें मैंने ईयर का फंक्शन यूज़ किया और जो मेरा बर्थ डेट का कॉलम है इस टेबल में उसको सेलेक्ट किया है. उसके बाद जो है फिर मैंने ये मेरे पास इसको मैं लिख रही हूँ डॉट करके और फिर मेरे पास इसका आंसर आ गया कि पूरी सारी जितनी भी जो भी ईयर्स हैं वो इसने एक्सट्रैक्ट करके कॉलम में ऐड कर दिया. अब मैंने नेक्स्ट न्यू कॉलम करके मैंने करंट एज लिखी है और इक्वल्स टू स्पेस का कोई इशू नहीं होता क्योंकि हम आगे कॉलम को ब्रैकेट में या उसमें यूज़ करते हैं सिंगल कोट्स में. मैंने डेट डिफरेंस के नाम से मेरे पास एक फंक्शन है, उसमें मैंने पहला एट्रीब्यूट मैंने अपनी जो ईयर मैंने निकाला है वो दे दी और जो है उसके बाद मैंने
टुडे का फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। और ईयर टुडे जो है वो ये होगा कि जब भी मैं रिपोर्ट ओपन करूँगी तो वो टुडे एज इन के ये ख़ुद ब खुद रीकैलकुलेट होके इसका आंसर आता रहेगा। तो ये मेरे पास सारी करंट एज आ गई है मेरे कस्टमर्स की।